नमस्ते बिटिया, हमेशा खुश रहो। माई सेल्फ JVN डॉक्टर पूजा शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन स्वास्थ्यता डिपार्टमेंट, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ, वुमेंस यूनिवर्सिटी, जयपुर, राजस्थान। Today's topic is cholera. We are discussing next part after 2 session of cholera, means it is last and third one part of cholera, in which we are discussing next part related to cholera. Control of cholera. It is now considered that the best way to control cholera is to develop and implement a national program for a control of all diarrheal disease because of similarities in epidemiology, pathophysiology, treatment and control of cholera and other acute diarrheal diseases. The following accounts is based on the guideline for the cholera control proposed by WHO, World Health Organization. First one is verification of the diagnosis. It is important to have confirmation of the outbreak as quickly as possible. All cases of diarrhea should be investigated even on the slightest suspicion. For the specific diagnosis of cholera, it is important to identify V. cholerae in the stool of the patient. Once the patient of cholera has been proved, it is not necessary to culture stool of all cases or contacts. Then second one is notification. In the notification we can see that cholera is a notifiable disease locally or nationally. Since 2005, cholera notification is no longer mandatory internationally. Health workers at all levels should be trained to identify and notify cases immediately to the local health authority. Under the international health regulation, cholera is notifiable to the WHO within 24 hours of its occurrence by the national government. Third one is early case finding. An aggressive search for cases should be made in the community to be able to initiate prompt treatment. Early detection of cases also permit the detection of infected household contacts and help the epidemiologist in the investigation that the means of spread of for deciding on specific interventions. सबसे पहले हमने वेरिफिकेशन देखा है कि वह कैसे वेरीफाई करेंगे डायग्नोसिस को. देन अपने नोटिफिकेशन निकाला, नोटिस किया कि कितने लोग उसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई किया. अगर उसके कांटेक्ट में अगर एक पेशेंट कंफर्म है केस कैच हुआ है तो उसके कांटेक्ट में आने वाले का हर किसी का टेस्ट करना ज़रूरी नहीं है. कई बार सिम्टम्स देख के भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है. अर्ली केस डिटेक्शन करेंगे, उसके क्या बेनिफिट है. अर्ली केस डिटेक्शन की वजह से अर्ली ट्रीटमेंट किया जा सकता है. उसके कॉन्टेक्ट्स में आने वाले लोगों को गाइड किया जा सकता है, उनको बचाया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है. उसकी वजह से एक लार्ज एरिया पे होने वाले इन्फेक्शन को थोड़ा सा कम किया जा सकता है. देन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रीटमेंट सेंटर्स. ट्रीटमेंट सेंटर का इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है. द माइल्डली डिहाइड्रेटेड पेशेंट्स should be treated at home with oral dehydration fluid. Severely dehydration patients requiring intravenous fluid should be transferred to the nearest treatment center or hospitals. If possible, they should receive oral dehydration on the way of the hospital or treatment center. If there is no hospital or treatment center,
within a convenient distance. A local school or public building should be taken over and converted into a temporary treatment center as close to the site of epidemic as possible. ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है कि कैसे ट्रीटमेंट सेंटर कहाँ इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए, किस लेवल तक इन्फेक्शन फैला हुआ है, उस हिसाब से क्या हमें ट्रीटमेंट एज सुन एज पॉसिबल प्रोवाइड किया जाना चाहिए। जैसे रिहाइड्रेशन थेरेपी फॉलो करवानी चाहिए तो उसके लिए ऑरली भी हो सकता है, ग्लूकोज मेथड भी हो सकता है और भी कई। देन rehydration therapy cholera is now the most effective treated disease. Mortality rate have been brought down to less than 1% by effective rehydration therapy. The rehydration may be oral or intravenous. Rehydration therapy orally भी दी जा सकती है और इंट्रावीनस भी दी जा सकती है, जैसे भी कन्वीनियंट हो। देन उसके बाद में adjuncts to therapy antibiotics should be given as soon as vomiting has stopped, which is मीन्स अब बात जो कर रहे हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की, उसमें एंटीबायोटिक्स और प्रोवाइड करवाने की हुई, जैसे सजेस्ट लाइक टेट्रासाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन, एम्पिसिलिन एक्सेट्रा एज सुन एज पॉसिबल। नेक्स्ट एपिडियोमोलॉजिकल investigation. General sanitation measures must be applied at the onset of outbreak. मीन्स एपिडियोमोलॉजिकल जो इन्वेस्टिगेशन होती है, एक बड़े एरिया पे जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें काफ़ी डाटास कवर किए जाते हैं, रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं, वो एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट कर देनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज सैनिटेशन मेजरमेंट। सैनिटेशन मेजर्स में क्या देखेंगे, वाटर कंट्रोल करना है, एक्सक्रेटर डिस्पोजल को मेंटेन करना है, मैनेज करना है, फूड सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना है, डिसइंफेक्शन को मेंटेन करना है, देन कीमो प्रोफाइलैक्सिस को फॉलो करना है, वैक्सीनेशन को फॉलो करना है, हेल्थ एजुकेशन को प्रमोट करना है, अवेयरनेस को प्रमोट करना है। दीज आर हेडिंग्स आर इंक्लूडेड इन दिस प्रिवेंशन और सैनिटाइजेशन मेज़र। अब हम वाटर कंट्रोल की बात करते हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल, एज वाटर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट व्हीकल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कॉलेरा, ऑल स्टेप्स मस्ट बी taken to provide properly treated otherwise safe water to the community for the all purpose. Various approaches have been described for the supply safe water quickly and with limited resources. मीन्स सेफ वाटर प्रोवाइड करवाने की कोशिश करनी चाहिए, जो वाटर का कंटेमिनेशन हो रहा है उसको कंट्रोल और प्रिवेंट करने की कोशिश करनी चाहिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों को प्यूरीफाई वाटर प्रोवाइड करवाने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट, एक्सक्रेटर डिस्पोजल। प्रोविज़न ऑफ सिंपल चीप एंड इफ़ेक्टिव एक्सक्रेटर डिस्पोजल सिस्टम इज सैनिटरी लैट्रिन। ये हम सैनिटरी लैट्रिन और एक्सक्रेटर डिस्पोजल वाले टॉपिक और चैप्टर में देख चुके हैं, उस क्लास में पढ़ चुके हैं कि सबसे बेस्ट मेथड जो होता है डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रेटर इज सैनिटरी लैट्रिन है। इट इज़ बेसिक नीड ऑफ ऑल ह्यूमन settlement. When cholera appear in community, the need of these facilities becomes vital. बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है अगर कम्युनिटी में कॉलेरा इन्फेक्शन फैल चुका होता है तो। With the cooperation of the community, simultaneously health education message should be stress the proper use of such facilities. मतलब लोगों को एजुकेशन करना है कि इन फैसिलिटी का प्रॉपर यूज़ करें, वाटर को कंटामिनेटेड वाटर को अवॉइड करके सेफ वाटर यूज़ करें, एक्सक्रेटर डिस्पोजल को ध्यान रखें, मैनेज करें। फूड सैनिटाइजेशन की बात करते हैं तो फूड को सैनिटाइज रखना है, हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन करनी है, कंटामिनेशन को अवॉइड करना है। फिर डिसइंफेक्शन की बात करते हैं तो डिसइंफेक्शन शुड बी बोथ कंकरेंट और टर्मिनल। इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं कि किस तरह
डिसइंफेक्शन किया जा सकता है। देन कीमोप्रोफाइलैक्सिस में हम आपको बता ही चुके हैं कि किस तरह क्या क्या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स हमको यूज़ करना है, कैसे कीमोथेरेपी को यूज़ किया जा सकता है, डॉक्सीसाइक्लिन यूज़ करके, टेट्रासाइक्लिन यूज़ करके। देन वैक्सीनेशन, oral vaccination, 3 type of oral coriella vaccines are available. First is Dukoral, second one is Sencol, and third one is Evicol. Next, health education. Health education is most important part for this disease or infection. सो इन शॉर्ट हमने यहाँ पे कॉलेरा को कम्प्लीटली देखा। बाकी रेफरेंस आप बुक्स को रेफ़र करेंगे, प्रेफर करेंगे। थैंक यू सो मच।